Last time we have just started with the new part, that is 8.13 human heart. As you know, human heart is mainly a pumping organ situated in the thoracic cavity. The space where the heart is present is called as mediastinum. ये last time मैंने आपको बताया था. Heart is a muscular organ and mesodermal in origin. It is made up of specialized muscle called as cardiac muscle. Heart is reddish brown in color. The weight of the heart is around 250 to 300 gram. So these all things we have seen last time. So today starting with the covering present around the heart, the protective covering present around the heart. The protective covering is called as pericardium. Pericardium is a covering present around the heart. So today we'll see about the covering of the heart and the heart wall. Starting with the covering present around the heart. Now heart has two main covering. The outer covering of the heart is called as fibrous pericardium, and the inner covering means both are the covering, and the inner covering is called as serous pericardium. Fibrous pericardium and serous pericardium. Fibrous pericardium is made up of fibrous connective tissue and it is comparatively tough, while the inner layer, that is serous pericardium, is comparatively smooth and flexible. This serous pericardium, that is the inner covering, is further divided into two parts. Now the serous pericardium में जो outer layer होती है, so remember ये जो blue वाली लाइन आपको दिख रही है, ये दोनों लाइन serous pericardium है, और बाहर वाली जो black लाइन है वो fibrous pericardium है. ये दो main layer है. अभी serous pericardium की दो sub layers होती हैं. Serous pericardium में the outer layer is called as parietal layer and the inner layer is called as visceral layer. The visceral layer is almost touching to the heart wall and the parietal layer is touching to the fibrous pericardium. दोनों के बीच में थोड़ा सा space है. The space present between parietal and visceral layer of serous pericardium, I am talking about this space, the space present between the space present between parietal and visceral layer of serous pericardium, this space is called as pericardial space. Now, the pericardial space is the space present in between the serous pericardium. Now this pericardial space is filled with the fluid. The fluid which is present in the pericardial space is called as pericardial fluid. Now this pericardial fluid, it is approximately 50 ml all around the heart. It is approximately 50 ml. Now remember, all these coverings are no doubt protective in nature. They are responsible for giving external protection to the heart. But the fluid which is present in the pericardial space is also very important as far as protection of the heart is concerned. Now this fluid which is present around the heart, this fluid is acting like a shock absorber. This fluid is responsible for absorbing the mechanical shock or mechanical jerk which may come to the heart because of external factor. Now, this pericardial fluid is also a viscous fluid, and being viscous liquid, it is responsible for keeping the heart in wet condition. Heart को wet condition में रखना, heart को external injury से बचाना, heart को protect करना. This is all about the function of pericardial fluid. So this is all about the pericardium, the covering present around the heart. Now the next part is heart wall. अभी ये कवरिंग को अगर हम हटा दें ना, ये कवरिंग को अगर हम हटा दें तो कवरिंग के बाद जो हमको हार्ट मिलेगा, हार्ट की जो वॉल होगी ना, ऐसी वॉल हर तरफ होगी. ये कवरिंग भी हर साइड प्रेजेंट होगी. ये जो हार्ट की वॉल है उसमें भी तीन सब लेयर होती हैं. द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट इज एपिकार्डियम. मिडल थिक लेयर जो ब्लू से मैंने शो किया है, मिडल थिक लेयर इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम एंड द इनर थिन लेयर इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम. Remember, the outer layer, that is epicardium, is made up of single layer of squamous epithelial cell, while the inner layer, that is endocardium, is also made up of single thin layer of squamous epithelium or flat epithelium, you can say. So both these layers are made up of single layer of flat epithelial cell. While the middle layer, myocardium is very thick layer and it is made up of cardiac muscle. Cardiac muscle का description 11th standard में आपने animal tissue में types of muscles में पढ़ा था. So a specialized muscle present in the middle wall of the heart
called as myocardium, and this myocardium is basically responsible for controlling the pumping action of the heart. यानी हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है that is controlled by myocardium. While epicardium and endocardium, outer and inner wall, this is protective in nature. This functional part is myocardium. It is responsible for generating the pumping action of the heart. It is responsible for conducting the heartbeat. Okay. Now the next part given in your book is external structure of heart. We'll discuss about the external structure of human heart. हमारा हार्ट बाहर से कैसा दिखाई देता है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं. Remember, the diagram which you are seeing here on the board, this is not the actual diagram. This diagram just for your reference. Actual diagram is given in the textbook. ये diagram आपको एग्जाम में पेपर में ड्रॉ नहीं करना है. ये diagram आपको सभी पार्ट्स, जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स क्लियर कर देगा. सारे पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो भी बुक में मेंशन किया है. नाउ if you observe the human heart externally, as you know, heart is a muscular organ. It is more or less conical in shape. The upper broad part is called as base of the heart and the lower part is called as apex. The pointed part is called as apex, which is almost touching the diaphragm on the lower side. Now the entire heart, which is more or less conical, is divided transversely into two parts. When you observe the heart externally, it seems to be made up of two different parts. The upper part is called as atria, also called as auricle, while the lower part is called as ventricle. Upper part is called as atria and the lower part is called as ventricle. ये ऊपर का पार्ट जो है वो atria है, lower part ventricle है. दोनों के बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, यू कैन सी अ ग्रूव इज प्रेजेंट. एक ग्रूव होता है, एक ऐसी डिप्रेशन वाली लाइन होती है, दबी हुई लाइन प्रेजेंट होती है. एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट है. उस ग्रूव को हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस. उसको कहते हैं कोरोनरी सल्कस. इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव. As it is present between atria and ventricle, it is called as atrioventricular groove. It is a groove present between atria and ventricle. It is called as coronary sulcus क्योंकि उस groove में से coronary blood vessels pass होती हैं. Thus it is called as coronary sulcus. अभी upper chamber atria है बच्चों, lower chamber ventricle है. Now अभी जो वेंट्रिकल है लोअर चैम्बर है. वेंट्रिकल भी लॉन्जिट्यूडनली डिवाइडेड है, अंदर से तो डिवाइडेड है, लेकिन अभी हम बाहर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो बाहर से आपको डिवीजन नहीं दिखाई देगा. बाहर की साइड में यू आर एबल टू सी द ग्रूव. बाहर की तरफ आपको एक लाइन दिखाई देगी, ग्रूव दिखाई देगी. वो जो ग्रूव आपको दिखेगा कहां पे दिखाई देगा? वेंट्रिकल भी लॉन्जिट्यूडनली डिवाइडेड है क्योंकि अंदर दो वेंट्रिकल्स होते हैं और दो एट्रिया भी होता है, राइट. Heart is internally divided into 4 compartments. 2 upper chambers are atria and the 2 lower chambers are ventricle. अभी दोनों ventricle के बीच में जो groove दिखाई देता है externally, उसको हम बोलते हैं interventricular sulcus. It may also be called as interventricular groove भी कह सकते हैं. Interventricular sulcus ये anterior और posterior दोनों साइड से दिखाई देगा. हार्ट का anterior wave और पोस्टीरियर वेव, दोनों वेव आपकी टेक्स्ट बुक में बना हुआ है. यू हैव टू रेफर द डायग्राम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. तो एंटीरियर वेव और पोस्टीरियर वेव दोनों वेव में आपको ये ग्रूव दिखाई देगा और इस ग्रूव से पास होती है कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन. कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन क्या है अभी डिटेलली शॉर्ट में आपको बताते हैं. द ब्लड वेसल विच सप्लाइज द ब्लड टू द मसल्स ऑफ द हार्ट. वो ब्लड वेसल जो हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, वो सर्कुलेशन जो हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है, उसको कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. और उसमें जो सप्लाई करने वाली आर्टरी है और कलेक्ट करने वाली वेन है. ओके, तो कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन इस ग्रूव से पास होती है. यू कैन सी अ प्रोमिनेंट ब्लड वेसल प्रेजेंट ऑन दिस ग्रूव विच कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड. तो यहां पे कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन प्रेजेंट होती है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट.
द नेक्स्ट पार्ट, बच्चों देखो अभी वेंट्रिकल जो है वो इंटरनली दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। इसमें से जो राइट साइड वाला ये वाला ना, ये हमारे बॉडी का राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये हार्ट का राइट वेव होगा, ये लेफ्ट वेव होगा। तो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने शॉर्ट में लिखा है, आरवी स्टैंड्स फॉर राइट वेंट्रिकल, एलवी स्टैंड्स फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल बाहर निकलती है, यू कैन सी द एरो, ये ब्लड वेसल बाहर निकल, राइट वेंट्रिकल से निकल रही है ब्लड वेसल, एंड दिस ब्लड वेसल विच कम्स आउट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज pulmonary trunk. After coming out of the heart, this pulmonary trunk divides into two parts. You can see it is going on either side. It is divided into two parts. It is divided into left pulmonary artery and right pulmonary artery. These pulmonary arteries are supplying blood to the right and left lungs. इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। डिटेल आगे हम और भी पढ़ेंगे। तो ये pulmonary trunk which comes out of the right ventricle, it divides into two parts, left pulmonary artery and right pulmonary artery. Similarly, the blood vessel coming out of the left ventricle से you can see this blood vessel is coming out ना, ये पीछे से होती हुई, यहां से होती हुई यू टर्न होके यहां तक आई है। This blood vessel is collectively called as aorta. इस ब्लड वेसल का नाम है aorta. इस ब्लड वेसल को हम आयोटा कहते हैं। बच्चों नाउ दिस आयोटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। दिस आयोटा ना, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। इसका एक पार्ट है असेंडिंग आयोटा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग आयोटा। ये मिडल वाला पार्ट जिसमें से ब्रांच निकल रही है, इट इज कॉल्ड एज आयोटिक आर्क। और वो आयोटा जो नीचे की साइड जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग आयोटा। Once again I am repeating, left ventricle से जो blood vessel निकल रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, this entire blood vessel is called as aorta. आयोटा के तीन पार्ट हैं। जब ये ऊपर की तरफ आती है आयोटा तो इसको असेंडिंग आयोटा कहते हैं। इसका मिडल पार्ट जिसमें से ब्रांचेस निकल रही है ऊपर की तरफ हेड रीजन में, सेफेलिक रीजन में जाती है, दिस इज कॉल्ड एज आयोटिक आर्क। और जो नीचे की तरफ आयोटा आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग आयोटा। अभी ये जो आयोटिक आर्क्स है ना, ये जो तीन ब्रांच निकल रही है, इसमें तीन ब्लड वेसल है, ये तीन अलग अलग ब्लड वेसल है, तीनों को मिलाकर हम आयोटिक आर्क कहते हैं। इसमें फर्स्ट वाली दिस ब्लड वेसल इज ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, सेकेंड वन इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द थर्ड वन इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। रिमेंबर, आयोटिक आर्क में ये तीनों ब्रांच आती है। आयोटिक आर्क ये वाला जो पार्ट है, इसमें तीनों ब्रांच आती है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तीनों को मिलाकर हम आयोटिक आर्क कहते हैं। ये दोनों ब्लड वेसल की डिटेल हो गई। नाउ अभी जो हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, बच्चों राइट एट्रियम रिसीव्स टू ब्लड वेसल। इसमें से ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है, इसमें ब्लड अंदर आ रहा है ना, राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, यू कैन सी द एरो, ब्लड इज कमिंग इनटू द राइट एट्रियम। ये ब्लड वेसल, दो ब्लड वेसल है, जो ऊपर से आती है ब्लड वेसल, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे से ब्लड वेसल आती है, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। This one is superior vena cava and this one is inferior vena cava. These two blood vessels are bringing deoxygenated blood from the entire body and the blood comes into the right atrium. उसके बाद ये वाला चैम्बर जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। बच्चों लेफ्ट एट्रियम में यू कैन सी ये दो ब्लड वेसल यहां से आ रही है, दो ब्लड वेसल और पीछे से आके यहां पर ओपन होगी। ये चारों ब्लड वेसल को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। दिस ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। तो चार ब्लड वेसल यहां पर ओपन हो रही है, जिसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, बच्चों ये जो ब्लड वेसल थी ना, जिसको हम कहते थे पल्मोनरी ट्रंक, जो सबसे पहले मैंने बताया था पल्मोनरी ट्रंक, एंड दिस वन इज आयोटा। नाउ पल्मोनरी ट्रंक एंड आयोटा यू कैन सी दीज, दे आर एक्सटर्नली कनेक्टेड। उनके बीच में एक छोटा सा कनेक्शन है, दे आर एक्सटर्नली जॉइंड, दे आर एक्सटर्नली कनेक्टेड, एंड दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टेरियोसम। द कनेक्शन इज कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टेरियोसम. Remember, this ligamentum arteriosum is the remnant
ऑफ डक्टस आर्टीरियोसिस, रेमिनेंट मतलब बचा हुआ हिस्सा है, छूटा हुआ हिस्सा है, किसका रेमिनेंट है? डक्टस आर्टीरियोसिस का। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पैदा होने से पहले जब हार्ट और ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो रहा था, उस टाइम ये रेमिनेंट था एम्ब्रियोनिक डक्ट। एम्ब्रियोनिक डक्ट जो था जिससे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, जिस डक्ट से, एम्ब्रियोनिक डक्ट का ये बचा हुआ पार्ट जिसे डक्टस आर्टीरियोसिस कहते हैं, वो डक्टस आर्टीरियोसिस से बनता है लिगामेंटम आर्टीरियोसम, एंड लिगामेंटम आर्टीरियोसम कैन बी सीन इन द एडल्ट हार्ट. It is a joint, it is an external connection between pulmonary trunk and aorta. This is ligamentum arteriosum. So this all thing is given in your book as the external structure of heart. Once again, I am reminding you have to refer diagram 8.18 and diagram 8.19. You have to refer both this figure given in your textbook. 8.18 and 8.19. These are the anterior and posterior view of the heart, dorsal and ventral view of the heart. ये डायग्राम आपको ऑब्जर्व करना है, ये डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, ये डायग्राम से तुमको सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए ये डायग्राम तुमको प्रैक्टिस करना है। सो दिस ऑल थिंग इज अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। Now the next part is internal structure of heart. Just now we have seen the external structure of heart. Now starting with the internal structure of heart. The diagram which is given in your textbook is very good, but it is little bit complicated. उस डायग्राम तक पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल चीजें एक्सप्लेन करता हूं so that वो डायग्राम आपके समझ में आए। तो पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं about the internal structure of heart, about the circulation in human body. बाद में एक्चुअल डायग्राम पे हम जाएंगे। तो स्टार्टिंग विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इफ यू कट द ह्यूमन हार्ट लॉन्जिट्यूडनली, अगर ह्यूमन हार्ट को हम लॉन्जिट्यूडनली कट करें टू सी द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द हार्ट, बच्चों हमारे हार्ट के अंदर ना, ये हमारा हार्ट है, ये रफ डायग्राम, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट। When you cut the human heart, it is internally made up of 4 compartments. As you know, both the upper chambers are called as atria and the lower chambers are called as ventricle. Upper chamber को atria या auricle कहते हैं, जो previous diagram में मैंने आपको बताया, and the lower chambers are called as ventricle. उसको short में मैं लिख रहा हूं। This is the left side of the heart. This is the left side of the heart. तो ये हमारा left atrium होगा, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ये राइट एट्रियम होगा और ये राइट वेंट्रिकल होगा। तो ये हमारे हार्ट के 4 कंपार्टमेंट्स हो गए। नाउ बिटवीन बोथ द एट्रियम, दोनों एट्रियम के बीच में यू कैन सी अ पार्टीशन प्रेजेंट इन बिटवीन बोथ द एट्रियम। ये पार्टीशन को, ये वाले पार्टीशन को ना, इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल septum. This partition is called as interatrial septum. The septum itself means partition. So the partition present between both the atria is called as interatrial septum. Similarly, the partition present between both the ventricles, दोनों ventricles के बीच में जो partition है, this partition is called as interventricular septum. This partition is called as interventricular septum. ये पार्टीशन कंटिन्यूएशन में है, मीन्स हमारा हार्ट इंटरनली लेफ्ट साइड अलग है और राइट साइड अलग है। राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड में नहीं जा सकता, लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में नहीं आ सकता, दोनों साइड के ब्लड्स अलग रहते हैं। नाउ बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में यू कैन सी दिस ट्रांसवर्स लाइन, इंटरनली वहां पर पार्टीशन है, एंड दिस पार्टीशन इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज atrioventricular septum. As it is present between atria and ventricle, it is called as atrioventricular septum. Now, this atrioventricular septum is not complete. It has some opening. यहां पर भी opening है और यहां पर भी opening है. This is rough diagram just to explain all the internal part. यहां पर opening है और यहां पर भी opening है, right?
and these openings are called as atrioventricular aperture. Aperture is opening present between atria and ventricle. So this one is called as right atrioventricular aperture and this one is called as left atrioventricular aperture. ये है हमारा, this one is atrioventricular aperture, that is the opening. तो इस पार्टीशन में दो जगह पर ओपनिंग्स होती हैं. नाउ ये जो इंटरएट्रियल सेप्टम है, इंटरएट्रियल सेप्टम, इस सेप्टम में एक जगह पर ऐसा डिप्रेशन बना होता है, ऐसा डिप्रेशन बना होता है. दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज, जो डिप्रेशन एट्रिया मतलब इंटरएट्रियल सेप्टम में है इसको कहते हैं foramen. It is called as fossa. It is called as fossa ovalis. This depression is called as fossa ovalis. Remember, fossa ovalis is a remnant of foramen ovalis or foramen ovale. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब हम पैदा नहीं हुए थे उस टाइम हमारे हार्ट में राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो पार्टीशन है इंटर एट्रियल सेप्टम है, इस सेप्टम में यहां पर एक ओपनिंग थी, उस टाइम पे ओपनिंग थी, यानी हार्ट में ओपनिंग थी, हार्ट के अंदर होल था. उस होल का नाम था फोरामेन ओवालिस या फोरामेन ओवेल. बट एट द टाइम ऑफ बर्थ वो ओपनिंग बंद हो जाती है और उसका निशान, उसका मार्क रह जाता है. दैट मार्क इज कॉल्ड एज फोसा ओवेलिस. ऐसे भी केस आपने सुने हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, पैदा होने के बाद भी उनकी ये ओपनिंग क्लोज नहीं हो पाती है, वो ओपनिंग रह जाती है पैदा होने के बाद भी. तो जनरली डॉक्टर कमेंट करते हैं कि बच्चे के हार्ट में होल है. हार्ट में होल का मतलब उनका फोसा ओवेलिस क्लोज नहीं हो पाया. हार्ट में होल का मतलब ये नहीं कि यहां पर कहीं खड्डा है, ब्लड बाहर जा रहा है, मतलब इंटरनली उनका ब्लड जो है वो मिक्स होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, विच इज अ क्लिनिकल कंडीशन. अभी और एक बात देखो बेटा, ये जो दोनों एट्रिया है ना, अपर चैम्बर, एट्रिया इज कंसिडर्ड एज रिसीविंग चैम्बर. इन दोनों चैम्बर को हम रिसीविंग चैम्बर कहते हैं, इसमें ब्लड आता है. और दोनों वेंट्रिकल्स को हम फॉरवर्डिंग चैम्बर या प्रोपेलिंग चैम्बर कहते हैं, इसमें से ब्लड बाहर जाता है, इसमें से ब्लड बाहर निकलता है. ओके, एट्रिया का ब्लड रिस्पेक्टिव यानी अपने साइड वाले वेंट्रिकल्स में आ सकता है, ऊपर से ब्लड नीचे आ सकता है, ऊपर से ब्लड नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे का ब्लड ऊपर नहीं जा सकता. नीचे का ब्लड ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहां पर वाल्व्स होते हैं, यहां पर वाल्व्स होते हैं. दोनों अपर्चर में, एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर में वाल्व्स होते हैं. राइट साइड में जो वाल्व है, यहां पर जो वाल्व है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. दिस वन विच इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वाल्व. और जो वाल्व लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, दिस वाल्व इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वाल्व. इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व. इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं. Remember, the significance of both these valves are they are responsible for preventing the backflow of the blood. यानी ब्लड ऊपर से नीचे आ सकता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता. नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, एट्रिया जो है ना, दोनों अपर चैम्बर, एट्रिया की वॉल जो होती है ये कंपैरेटिवली थिन होती है, ये थिन वॉल्ड है. और जो वेंट्रिकल की वॉल होती है ये कंपैरेटिवली थिक होती है, ये थिक वॉल इसमें प्रेजेंट होती है. ऐसा क्यों? बिकॉज एट्रिया ये रिसीविंग चैम्बर है, इसमें ब्लड लेना है, उसको इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट करने की जरूरत नहीं है. और ये फॉरवर्डिंग चैम्बर है, इनको ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए इसकी वॉल थिक होती है. नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो थिक वॉल है, अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में कंपेयर करें, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा थिक होती है.
मतलब सबसे ज्यादा थिक राइट वेंट्रिकल की वॉल होती। इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसको ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, सर से लेके पैर तक सप्लाई करना है, उसमें ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है। वाइल राइट वेंट्रिकल को ब्लड सिर्फ लंग्स तक सप्लाई करना है, इसके लिए यहां पे कम प्रेशर की जरूरत पड़ती है। सो दिस ऑल अबाउट द थिकनेस ऑफ द वॉल, थिकनेस ऑफ द वॉल। नाउ एक और पॉइंट याद रखो कि लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ये दोनों लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट डील्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वाइल राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट डील्स विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कभी मिक्स नहीं होगा, हार्ट के अंदर मिक्स नहीं होगा। अगर यहां ओपनिंग होती जैसे एबनॉर्मल केस में होती है तो ब्लड मिक्स हो जाता, जिसके वजह से बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता और प्रॉब्लम क्रिएट होता। नाउ अभी और भी बहुत सी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं, राइट। अभी सुनो, अभी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए एग्जांपल, ये हमारा बॉडी टिश्यू है, ये हमारा बॉडी टिश्यू है, राइट, और ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, ये बॉडी टिश्यू है जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। नाउ इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्कुलेशन क्या होगा, लास्ट टाइम लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी प्रोबेबली मैंने एक्सप्लेन किया था, ये जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लंग से आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहां पर आ जाएगा, ये आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम का ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू द बॉडी, बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होगा, और बॉडी में जब CO2 का फॉर्मेशन होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम इन द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम टू द राइट वेंट्रिकल। मैंने पहले भी बताया था, वापस से रिपीट करता हूं, ये जो सर्किट बनती है ना, ये वाली सर्किट बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, ये वाली सर्किट को हम बोलते हैं, किसको हम बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस वन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में जो सर्किट बनती है, दिस वन इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, नाउ अभी ये तो सर्किट मैंने बताया, दोनों को मिलाकर हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और एक पॉइंट याद रखो बच्चों, द ब्लड वेसल विच कैरीज द ब्लड away from the heart, the blood vessel which carries the blood away from the heart is called as artery, while the blood vessel which brings the blood towards the heart is called as vein. जो दूर जाती है वो आर्टरी है, जो हार्ट के करीब आती है वो वेन है, जो रिटर्न आती है वो वेन है। तो आप एरो से देखो, अंदाजा लगाओ, ये दूर जा रही है ना, तो ये आर्टरी होगी। पल्मोनरी सर्कुलेशन की इस आर्टरी को, इस ब्लड वेसल का नाम है, इसका नाम है पल्मोनरी, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। एंड दिस ब्लड वेसल विच इज कमिंग इनटू द हार्ट, दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन है। सिमिलरली ऑन दिस साइड अगर आप देखें, ये सिस्टमिक आर्टरी होना चाहिए, ठीक है, ये सिस्टमिक आर्टरी है। इस सिस्टमिक आर्टरी को ही हम कहते हैं, इसका नाम है आयोटा। और सिस्टमिक वेन को हम बोलते हैं, सिस्टमिक वेन का नाम है वेना कावा, इसका नाम है वेना कावा। ओके, सो दीज ऑल अबाउट दी 4 मेजर ब्लड वेसल। अभी इसमें और भी ब्लड वेसल है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूं। नाउ अभी देखो बच्चों, बॉडी से जो ब्लड वेसल आ रही है ना, बॉडी से जो ब्लड वेसल आ रही है राइट एट्रियम में, ओके, इसमें और भी बहुत सी चीजें बाकी हैं जो नेक्स्ट सेम बोर्ड आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर की टाइमिंग पूरी हो गई।